Welcome students in the next class of the physics. Now you know how we can form the images in front of the concave and the convex mirror. And I have also given you the summary of the image formation for the convex and the concave. And also I have given you the uses for the concave and the convex mirror. For the previous classes, 2 classes I have taken, I will like to use some important questions and see the way you have to answer. One question is that, are you going to define the focus? Simple question. How you can answer? You say a ray of light parallel to the principal axis after the reflection strikes or intersect at a point on the principal axis, and this point of intersection is known as the focus of the mirror. If you have the convex, if a parallel ray strikes the convex mirror, it reflects in such a manner that it seems to be coming out from a point on the on the principal axis. That point is known as the focus. A ray of parallel light falling on the convex mirror after the reflection, it seems to be coming from a point on the principal axis. That point is the focus. सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको एक और बोला था उसको अच्छे से करने के लिए, व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. हम क्यों यूज करते हैं इसको? इसका आंसर क्या है? If simply 1 marks question is there, then you write because field of view is large in convex mirror. That's why we are using. Second, image is always erect. हमको हमेशा सीधी में मिलती है. अब दोनों में क्या डिसएडवांटेज है? अगर मेरे को कॉन्केव में क्या डिसएडवांटेज है और प्लेन में क्या है? कॉन्केव की प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो इमेज की जो साइज है वो वेरिएबल मिलेंगे. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम जाता होगा, इमेज का वो इन्वर्टेड होगी, छोटी बड़ी होगी, बीच में सीधी हो जाएगी, तो वो हमें शूट नहीं करता. बट व्हाट आर द प्लेन? इन द प्लेन मिरर you have always the same size of the image, but field of view is small as compared to this. And if the question says show by the ray diagram or prove that your statement, उसको प्रूव करके दिखाइए कि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, सिंपली you make a convex mirror. This is the focus, central curvature. If you take up any point on the mirror and connect to the C, this line act as a normal on the. Similarly here, you can take this is normal for this surface. Ray of light is coming here and follows the laws of refraction. दोनों इनके बराबर होंगे. सिमिलरली इधर से रे कोई आ रही है अगर, ये भी laws of refraction को फॉलो करेंगे, इक्वल हो जाएंगे. And here it reaches towards the eye, where you are seeing the
ऑब्जेक्ट इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, सो दिस इज द, इधर से आई ये पहुंची इधर से, तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया फील्ड ऑफ व्यू। और अगर हम यहाँ पर प्लेन मिरर ले लेते हैं तो प्लेन मिरर में क्या है, दिस एक्ट एज ए नॉर्मल, दोनों एंगल बराबर बनाएंगे, इसको बराबर बनाएंगे और यहां पर इसको देख रहे हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू से कितना है, इतना है, ये फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ स्मॉल फॉर दिस। अभी इसमें और भी स्कोप है, हम और आगे तक जा सकते हैं, यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है और इमेज सीधी मिलेगी इसके, इसको क्लियर हाउ वी कैन शो दैट। Next thing is that how you can distinguish the three mirrors, plane mirror, concave mirror और convex mirror। कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, उसके लिए करना क्या है आपको, आप how you can distinguish the three mirrors, that is plane, convex and concave। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसके लिए हमको दो मेथड है। पहला क्या है, बाय टचिंग कर सकते हैं। टच करने में क्या है, जो प्लेन मिरर है इसका सरफेस कैसा होगा, प्लेन, छू के देखेंगे प्लेन मिलेगा, तो ये प्लेन मिरर हो जाएगा, प्लेन सरफेस हमको मिलना है। और अगर शैलो है, शैलो है, इधर पेंट है, यहां पे हम टच करके देखेंगे तो शैलो लगेगा, ये हो जाएगा कॉनकेव। और अगर बल्जिंग है, इधर पेंट है, पेंट के दूसरी तरफ टच करेंगे इधर, तो ये बल्जिंग में फील होगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो ये टचिंग से हमने इसको देखा है। लेकिन अगर वो कहता है टच नहीं करना है, जस्ट सी द इमेज, इमेज देखकर बताइए, तो सेकंड मेथड क्या है, जो इसका सेकंड मेथड है, बाय इमेजेस। अब मैंने 3 मिरर यहां पर लगा दिए, एंड आई टोल्ड यू दैट you see the images from the distance place and then tell where what type mirror is. This is the first mirror, this is the second mirror, third. So you see in the first mirror, suppose you have done in the first mirror, suppose you are getting the erect image, one thing, and it is diminished, छोटी दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के साइज से, एंड here you have the erect image also, but same size, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी दिखाई दे रही है। Here you are having the inverted image, इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है हमें, और वेरिंग साइज। वेरिंग साइज का मतलब क्या है, हमने तीनों मिरर लगा दिए,
हम वन बाई वन मूव करेंगे, स्मॉल स्टेप्स वी टेकिंग टुवर्ड द मिरर। फर्स्ट वन देखेंगे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेकंड में भी देखेंगे पहले में छोटा था तो छोटा ही है, सेकंड वाले में देखेंगे कि वो सेम साइज बना रहा है, और थर्ड में देख रहे हैं कि उसकी इमेज की जो साइज है वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है और इन्वर्टेड है। सो फाइनली आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज द कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज प्लेन एंड दिस वन इज कॉनकेव। तो मैं डिसाइड कर सकते हैं ये तीनों मिरर कैसे थे। नेक्स्ट अब हम चलेंगे इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है, द साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली वी कैन डू दैट। सो बिफोर दैट वी हैव टू लर्न द साइन कन्वेंशन।